नमस्कार, देश की बात में हाजिर है। पहले बात G20 से जुड़ी हुई 9 और 10 सितंबर को ये बैठक होने जा रही है और इसी संदर्भ में आज केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एनडीटीवी से बात करते हुए कई अहम बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने जिस तरह से G20 का कद बढ़ाया है, कहा कि हमारी अध्यक्षता सच्चे अर्थों में ग्लोबल है। हम 145 देशों की ओर से बोल रहे हैं। ग्लोबल साउथ एकता का एहसास भी है। वैश्विक पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी है। चीन के मैप को जिसमें उसने कुछ हिस्सों को अपना दिखाया, उस पर विदेश मंत्री ने उन्होंने कहा कि चीन के दावे से कुछ नहीं होता। आइए कुछ अहम बिंदुओं को सुनते हैं जो उन्होंने कही आज इंटरव्यू के दौरान। पहली चीज ये है कि जिस तरीके से G20 का अभी तक कन्वर्सेशन चला है, उसमें ज्वाइंट कम्युनिके कितना फिजिबल लगता है, खास करके तब जबकि ठीक इसके पहले चाइना फिर एक मैप रिलीज करके जिसको कहते हैं इरिटेशन खड़ा करना, वो कोशिश कर रहा है कि अक्साई चीन, अरुणाचल उसका पार्ट है। हम बहुत माइंडफुल हैं इस बात के लिए कि G20 इकोनॉमिक कॉपरेशन का एजेंडा है और वहाँ हमको साइड ट्रैक नहीं होना चाहिए। फिर भी ये चाइना ओवरहैंग तो जाने वाला नहीं है। This is this map which China has put out. Look, China has even in the past put out maps which claim the territories which are not China's, which belong to other countries. This is an old habit of theirs. It is not something which is new. It started in the 1950s. So just by putting out a map claiming territories, some of which are part of India, I think doesn't make that. I mean, these are very much part of India. So I would say, but I would not relate the two countries. I think we are very clear. We are very clear what our territories are. This government is very clear about what we need to defend our territories. You can already see that on our borders. I think there should be no doubt about that. Just making absurd claims doesn't make other people's territory yours. Let's be very clear on that. This is not the first time they issued a map, as you know that they've been good. So I think there are two different issues. The disengagement talks, what is going on there. Are you hopeful? Which? About disengagement conversations, are you hopeful? I'm a person who spent a lifetime in diplomacy. Only hopeful and optimistic people come to diplomacy. So, there is no problem. There's no problem I believe we cannot solve. It is, and when I am representing in diplomacy 1.4 crore Indians, 140 crore Indians, I think there should be no doubt about that. Because look, as a nation of 1.4 billion people today, we have a weight in the world. We have an influence in the world. We stand for something. So how do we hope that Global South will be a force to reckon with and Global North will actually engage and get the sense of responsibility that we want to see in them? Now, what do you mean people are confused? I mean, who is confused? Because it is not developing countries only. There are many developed countries with cross interests like China. No, see, those who are Global South know inside that they are Global South. China. Let me repeat. Those who are really Global South know really inside that they are Global South. Why do they know? Because at the end of the day, Global South is partly a reflection of development, obviously a reflection of income, a reflection of history, what happened to them 100 years ago, 200 years ago. But at the end of the day, Global South is a place in the heart. You have to behave like Global South to be part of Global South. So people will judge. Anybody can say we are Global South. Question is, do you behave like Global South? And by Global South, to me, Global South is a country which is in the middle of its the vaccine program. That while we are vaccinating our own people, we are willing to share with others. We are a Global South are those who, whatever their limited resources, they will do things for other countries because there is that feeling today that we are
part of a family, that your problems are my problems. I would say Global South to me is partly income, partly mindset, partly heart, partly performance on the ground. So if you look today at India, people do say, I have been to other countries where what we did during COVID has, even today people remember it. Not governments remember it. People on the street remember it. True. That I've been to parts of Latin America where I've been stopped on the street by people who cannot, with whom even language is not common, but who will indicate in some form that they care at that time they were with us. So, to me, the issue, the challenge is this. Global South is also, there is a sense of solidarity and a conviction which will make you do it in an emergency. So, who shares even limited resources is a very important thing. आप लोगों की फॉरेन पॉलिसी का एक सबसे बड़ा सक्सेस क्या आप जानते हैं कि मीडिया का कोई भी कन्वर्सेशन, ऐसी कोई भी बातचीत आजकल पाकिस्तान के बिना पूरी हो जाती है। लेकिन हम लोग हैं मिस्चीवियस लोग। मैंने सोचा कि आप रुकने वाले हैं उसके बाद। मैंने सोचा था कि एक्चुअली कि पूछूं कि ना पूछूं, लेकिन थोड़ा मिस्चीफ तो बनता है। तो अभी हम 13 अगस्त को श्रीनगर में थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से बात कर रहे थे, तो वहाँ एक नारा लग रहा था कि आर हो या पार कश्मीर हमारा है। तो मैंने, गवर्नर उसको लीड कर रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि ये नारा आपकी रैली में लगा है, तो क्या कहते हैं आप? तो बोला मैं नहीं कहूँगा, ये विषय विदेश मंत्रालय का है। तो ओवर टू यू। नहीं, देखिए ऐसा है, एक तो जो आपने कहा कि आजकल अगर पाकिस्तान की बात जो है कम हो रही है, तो इसको मैं क्या कहूँ, एक किस्म से यू कैन से इट इज़ अ वर्डिक्ट ऑफ द मार्केट। आई मीन लूजिंग स्टॉक में कौन बात करता है। और आपको बता दें, पूरी बातचीत आप आज रात 9 बजे NDTV इंडिया पर देख सकते हैं। और देश की बात में आइए आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 के हटने पर चर्चा हुई। संविधान पीठ ने सरकार से कई सीधे सवाल पूछे। उनमें से 2 ये हैं कि राज्य का दर्जा कब वापस मिलेगा या चुनाव को लेकर क्या रोड मैप हो। तो सुप्रीम कोर्ट के सवालों के बाद केंद्र का बड़ा बयान आया है कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना रहेगा। जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जा देने के लिए 31 अगस्त को पॉजिटिव बयान देंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट को 31 अगस्त को बताएंगे। इलाके में स्थानीय निकाय चुनाव पहले ही हो रहे हैं। सितंबर में लद्दाख और करगिल में स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले हैं। तो आइए आगे बढ़ने से पहले हमारे सहयोगी आशीष भार्गव जो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, उनसे उनकी जानकारी दिखाते हैं आपको। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने को लेकर अहम सुनवाई का दौर ये शुरू हो गया है। 12वें दिन केंद्र सरकार को कड़े और बड़े सवालों से गुजरना पड़ा, जब सुप्रीम कोर्ट ने उससे पूछा कि आखिरकार कब तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है वो केंद्र शासित प्रदेश रहेंगे। क्या ये केंद्र शासित प्रदेश रहना स्थायी है या फिर अस्थायी है। इसके अलावा उन्होंने ये भी पूछा कि आखिरकार जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस फिर कब मिलेगा। रोड मैप जो है चुनाव को लेकर वो केंद्र सरकार का क्या है। ये भी कहा कि केंद्र सरकार सिर्फ इसलिए दखल नहीं दे सकती क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है वो सीमावर्ती राज्य है और राष्ट्रीय हित के नाम पर वहाँ कुछ भी नहीं किया जा सकता। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अगर केंद्र सरकार को या संसद को
किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की शक्ति है, तो फिर ये कैसे सुनिश्चित होगा कि ऐसी शक्ति का दुरुपयोग नहीं होगा। बड़े सवालों के जवाब पूछे और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वो लंच के बाद इस बात का जवाब दें। और इसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे और उन्होंने बताया कि लद्दाख जो है वो यूटी ही रहेगा, यानी केंद्र शासित प्रदेश रहेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर का जो यूटी का दर्जा है वो अस्थायी है। और जल्द ही यानी 31 अगस्त को केंद्र जो है कि उसकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक सकारात्मक बड़ा बयान दिया जाएगा। यानी 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा देने के लिए, विधानसभा चुनाव कराने के लिए रोड मैप का खुलासा करेगी, बयान देगी। तो एक बड़ी यहाँ पर डेवलपमेंट हुई है। सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा है कि लद्दाख और करगिल में स्थानीय चुनाव हो रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार के पास और कोई चारा नहीं था। जिस तरीके से पाकिस्तान और बाकी चीज़ें वहां पर हो रही थी, उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया था। तो काफ़ी अहम ये सुनवाई है और ये सुनवाई अब 31 अगस्त को होगी, जहां पर जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ी घोषणा, एक बड़ा दावा वहां पर सुप्रीम कोर्ट में मिल सकता है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। तो आशीष भार्गव ने हमें जानकारी दी सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ, और इस पर और गहराई से समझने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ वकील विराग गुप्ता मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विराग जी। आप ही से समझना चाहेंगे, आपका क्या आंकलन है जो 370 को लेकर, और खास तौर से आज जो एक सकारात्मक रुख सामने आया है जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जे को लेकर और चुनावों को लेकर, एक संकेत मिले हैं इसके, किस तरह से आप देख रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में आज हुआ? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ उसके पहले मैं अभी आपका जो इंटरव्यू चल रहा था जिसमें विदेश मंत्री का उन्होंने बयान दिया कि इस पार या उस पार जो श्रीनगर का जो माहौल था, इसमें मैं बताना चाहूंगा कि बहुत पहले जब कांग्रेस में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, उस समय संसद ने एक प्रस्ताव पारित किया था कि जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसका भारत में विलय होना चाहिए और भारत को उसका हिस्सा क्योंकि भारत का ही हिस्सा है। अब यहां से देखना चाहिए कि अगर भारत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर अपने कब्जे को संसद की अभिव्यक्ति है लेने की कोशिश कर रहा है, तो जो भारत का हिस्से वाला कश्मीर है वो मुख्य धारा में क्यों नहीं आना चाहिए। और इसके 4 बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट में पिछले कई दिनों से सुनवाई चल रही है। और जब 2019 में जब केंद्र सरकार ने संसद में फैसला लिया था, उसके पहले से सुप्रीम कोर्ट में 5 साल पहले से कई सारी PIL फाइल की गई थी, जिसमें अनुच्छेद 370 के खात्मे, 35A के खात्मे की मांग की गई थी। तो अब ये 4-5 साल बाद जो सुनवाई चालू हुई है उसमें 4 मुद्दे हैं। पहला, क्या 370 को खत्म करने का अधिकार था संसद को या नहीं था? दूसरा, क्या प्रक्रिया सही तरीके से हुई या नहीं हुई? तीसरा, 35A के बारे में। और चौथा, जो पुराने राज्य को टुकड़ों में बांट करके यूनियन टेरिटरी बनाया गया उस बारे में। अब इसमें सारे मुद्दों पर सरकार की तरफ से जवाब दिया जा रहा है। मोटे तौर पर हर मुद्दे का 370 के बारे में ये कहा जा रहा है कि 370 के तहत ही संविधान के बहुत सारे हिस्से जम्मू कश्मीर पर लागू हुए थे और उन्हीं अधिकारों का इस्तेमाल करके 370 को खत्म नहीं किया गया, उसको निष्प्रभावी बनाया गया और इसके लिए संसद को और राष्ट्रपति को शक्ति थी। 35A के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही बोला कि ये वहां पे एक डिस्क्रिमिनेशन पैदा करता था, नागरिकता के विशेष प्रावधान पैदा करता था, स्त्री और पुरुषों के बीच में फर्क पैदा करता था और ये अनुच्छेद 14 के खिलाफ था, इसलिए इसको खत्म करना ठीक रहा। तीसरी प्रक्रिया की बात आती है जो बड़ी जटिल और बड़ी गलत तरीके से बहस उसमें बढ़ रही थी और उसमें कहा गया कि ब्रेक्जिट टाइप से जनमत संग्रह होना चाहिए या जम्मू कश्मीर में संविधान सभा के पास ही सारे अधिकार थे या 370 बेसिक स्ट्रक्चर से बड़ा हिस्सा है। तो उस पूरी प्रक्रिया में एक ये सवाल उठ रहा था कि क्या संसद के पास संविधान के किसी प्रावधान को खत्म करने की शक्ति है या नहीं है। क्या कोई प्रावधान ऐसा भी हो सकता है जिसके चैप्टर में ही एक टेम्परेरी लिखा हो और उसको बेसिक स्ट्रक्चर से बड़ा बनाया जाए। और जब जनमत संग्रह की बात होती है तो क्या जनमत संग्रह सिर्फ जम्मू कश्मीर में होगा या पूरे भारतवर्ष में होगा, और अगर सिर्फ जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह होगा तो क्या यूनाइटेड नेशंस में जो पाकिस्तान का प्रस्ताव है क्या हम उसके हाथों में खेल रहे होंगे। ये बातें थी
जहां तक नए राज्यों की या टुकड़ों में करने की बात है, इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 3 में प्रावधान है और उसके तहत संसद को पूरी शक्ति है किसी भी राज्य की सीमाओं में बदलाव करने की, नाम में बदलाव करने की, और उन्हीं शक्तियों के इस्तेमाल से ये जो बना है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट सरकार से पूछ रही है, क्योंकि संसद में भी सरकार ने बोला था कि ये जो अभी राज्यों का जो स्थिति बदली गई है वो टेम्परेरी पीरियड की बदली गई है और बहुत जल्द वहां पर चुनाव होने के बाद राज्यों का दर्जा बहाल होगा। अब सरकार ने एक नई बात बोली है कि लद्दाख का दर्जा यूनियन टेरिटरी या जो वहां पे काउंसिल है उसका रहेगा और जम्मू कश्मीर को मुख्य राज्य का दर्जा फिर से दिया जाएगा। कब दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, यह सवाल मौजूद है। बिल्कुल विराग जी, आपने का बहुत दिलचस्प पहलू बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और 31 अगस्त का फिलहाल सबको इंतजार रहेगा कि क्या संदेश या क्या होता है जम्मू कश्मीर में चुनावों को लेकर या दर्जे को लेकर, राज्य के दर्जे को लेकर। बहरहाल देश की बात में अब आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश से बात। मध्य प्रदेश में इस बार विधानसभा चुनावों में जनता को मुफ्त में दी जाने वाली स्कीम यानी रेवड़ियां मुख्य मुद्दा बन गई है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच होड़ लगी है कि कौन कितनी रेवड़ी बांट सकता है। बीजेपी की दलील है कि गरीबों के जीवन स्तर को सुधारना सरकार का काम है। कांग्रेस कह रही है कि सरकार बनने पर गरीबों के हालात बदलना उसका जिम्मा है। लेकिन इस सबके बीच एक हकीकत यह भी है कि सरकारी खजाना खाली है और कर्जे का बोझ हर दिन बढ़ रहा है। हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिलवाया जाएगा। गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का नहीं, 500 रुपए का आपको मिलेगा। आपके लिए 100 यूनिट बिजली माफ होंगे सबके लिए। 200 यूनिट बिजली बिल की हाफ होगी, मतलब आधी। हम मध्य प्रदेश में भी पुराना पेंशन लागू करेंगे। जो किसान कर्ज माफ करने का काम हमने शुरू किया था उसको पूरा करेंगे और जो बचे हुए किसान हैं उनका ऋण माफ किया जाएगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने 6 गारंटी से चुनावी समर का बिगुल फूंका। मध्य प्रदेश बीजेपी ने उसमें से अब तक 4 छीन ली। नारी सम्मान में कांग्रेस के 1500 के वायदे पर लाडली बहना को 1250 रुपए देने लगे। वायदा इसे हर महीने 3000 तक ले जाने का। कांग्रेस के गैस सिलेंडर 500 में देने के वायदे पर सावन में गैस सिलेंडर 450 रुपए में देने का ऐलान कर दिया। ये और बात है कि सावन में बस एक दिन बचा है और सिलेंडर मिला नहीं। कांग्रेस के बिजली बिल में 100 यूनिट माफ, 200 हाफ पर बिजली बिल 100 रुपए महीने का वायदा कर दिया। अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 400 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए देने का वायदा किया गया है। 1000 रुपया महीना मिल रहा है, लेकिन अब राखी का त्योहार आने वाला है तो सुनो मेरी बहनों, उसका इंतजाम भी करूंगा। आज अभी इसी क्षण सिंगल क्लिक से तुम्हारे खाते में मैं राखी के लिए 250 रुपया अभी डालने का काम कर रहा हूं। तुम्हारे बैंक अकाउंट मेरे पास है। इस राखी के कच्चे धागे की कसम खा के कहता हूं मैं जीऊंगा। कांग्रेस बीजेपी दोनों ढेर सारे वायदे कर रहे हैं। जैसे मुख्यमंत्री ने कहा, लाडली बहना में राशि धीरे धीरे 3000 रुपए प्रति हितग्राही होगी, यानी 1.25 करोड़ हितग्राहियों के लिए 3750 करोड़ रुपए हर महीने, सालाना 45,000 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश सरकार पर फिलहाल 3,70,000 करोड़ के आसपास का कर्ज है। हर महीने राज्य का खर्च औसतन 25,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ये हालात तब हैं जब 2005 में ऋण जीएसडीपी अनुपात 39.5% था। 2022 में ऋण जीएसडीपी अनुपात 29% हो गया। राज्य कर्जे में डूब रहा है। देश में रेवड़ी को लेकर बहस हो रही है। ऐसे में कांग्रेस बीजेपी राज्य में रेवड़ी और जन कल्याण को लेकर उलझे हैं। यह आवश्यक समझती है कि गरीब के जीवन में, दलित के जीवन में, महिला के जीवन में सक्षमता आनी चाहिए और उसकी क्षमता वृद्धि के लिए, जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए यदि सरकार को सहायता करनी है तो सरकार को सहायता करनी चाहिए। लेकिन सामान्य तौर पर मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी विकास और जन कल्याण के मुद्दे पर ही चुनाव के बीच में जाती है और इस बार का यह चुनाव भी विकास और जन कल्याण के मुद्दे पर ही स्थिर रहेगा। ये चुनावी
इवेंट मैनेजमेंट है, इसके अलावा कुछ नहीं। इतने सालों में आपको याद क्यों नहीं आई? जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस तो एक वचन दे रही है। कमलनाथ जी ने 18 के पहले भी वचन दिए तो उनको पूरे किए। वो वचन दे रही कि कांग्रेस की सरकार को आशीर्वाद मिलेगा आपका, और ये बाकायदा एक नंबर है 7069001234। इस पर जब डायल किया जाता है तो उनकी आवाज़ में आता है कि मैं वचन देता हूँ कि 500 रुपये में गैस सिलेंडर और 1500 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे। कुल मिलाकर सरकार का खर्च बढ़ रहा है, कमाई नहीं, लेकिन घोषणाओं की बाढ़ दो तरफा है। ये पोस्टर आप देख रहे होंगे, ये भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन किसी भी राज्य में चले जाइए, किसी भी पार्टी की सरकार हो, अगर ऐसे पोस्टर सरकार की तरफ से लगे हैं तो वो जन कल्याण है, विपक्ष के लिए रेवड़ी। तय आपको करना है, आखिर ईवीएम का बटन आपके हाथ में है, क्योंकि राजनीतिक दलों के बीच तो इसको लेकर नूरा कुश्ती चलती रहेगी। भोपाल से अपने सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और एक बड़ा फैसला लेते हुए केंद्र सरकार ने एलपीजी सिलेंडर के दाम में 200 रुपए की कटौती करने की घोषणा की है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को पहले से ही 200 रुपए प्रति सिलेंडर की सब्सिडी मिलती है। सरकार के मुताबिक ये सब्सिडी पहले की तरह जारी रहेगी। फैसला 30 अगस्त से लागू होगा। सरकार ने इस घोषणा को रक्षाबंधन और ओणम के अवसर पर महिलाओं के लिए तोहफा बताया है। घटी हुई कीमत 30 अगस्त से देश भर में लागू होगी। उज्ज्वला स्कीम के लाभार्थियों को पहले की तरह 200 का प्रति सिलेंडर सब्सिडी खाते में आती रहेगी। सरकार ने फैसला लिया है कि उज्ज्वला योजना के तहत 75 लाख नए लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा और उन्हें फ्री गैस कनेक्शन दिया जाएगा। दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में रहने वाले मुस्लिम कामगार डरे हुए हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 69A में मुसलमानों की एक झुग्गी में धमकी भरे पोस्टर लगाए गए। कहा गया कि वो छोड़कर जाएं, वरना झुग्गी जला दी जाएगी। महिलाओं को लेकर भी धमकी दी गई, लेकिन फिलहाल अब पोस्टर्स हटा लिए गए हैं। प्रशासन हरकत में है। देखिए ये रिपोर्ट। ये धमकी भरे पोस्टर किसी की भी नींद उड़ा सकते हैं। ये पोस्टर देश की मेगा सिटी कहे जाने वाले गुरुग्राम शहर की सेक्टर 69A की झुग्गियों में लगे हैं, जहां ज्यादातर मुसलमान कामगार रहते हैं। रविवार रात लगाए गए पोस्टरों में लिखा है कि झुग्गी वालों 28 अगस्त तक झुग्गियां खाली करके यहां से चले जाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा भुगतना पड़ सकता है। अगर इज्जत बचानी है तो बस 2 दिन है तुम्हारे पास। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पहले पोस्टर हटवाए, फिर मुकदमा दर्ज कर लोगों को भरोसा दिलाया कि वो सुरक्षित हैं। पेपर के ऊपर कुछ बातें इस तरह लिखी गई हैं कि झुग्गी वासियों को झुग्गियां खाली करने के लिए 2 दिन का समय दिया था, नहीं तो झुग्गियां जलाने की धमकी दी गई थी। इसके बारे में सूचना मिली थी, तो सूचना के बाद पुलिस यहाँ पर पहुंची है और इसके बाद जो आवश्यक कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी इसमें, और जो इसके जिम्मेदार जल्दी वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यहाँ रहने वाली ज्यादातर महिलाएं आसपास बनी ऊंचे चमचमाते फ्लैट्स में साफ सफाई या खाना बनाने का काम करती हैं। पोस्टर पढ़ने के बाद से ये सब बेहद डरे हुए हैं। उसका भय थोड़ा बहुत रहेगा, 1 दिन 2 दिन बना हुआ, नहीं तो फिर जैसे लोग काम पे चले जाते हैं से चले जाएंगे। सुबह तो सब 5 बजे से उठते हैं, 6 बजे 8 बजे तो सब काम पे रहते हैं। सिर्फ बच्चे रहते हैं, बच्चे का डर रहेगा बस। क्या करते हो आप यहाँ पे? काम मेरा अच्छे से मैं काम करती हूँ। अच्छा, ये कोठियों में हम लोग सारे काम साफ सफाई का खाना। नूह में हुई हिंसा और फिर गुरुग्राम में मुस्लिम दुकानदारों के साथ मारपीट के बाद इस झुग्गी से भी कई मुस्लिम परिवार डर से पलायन कर चुके हैं और पोस्टरों ने इनका डर और बढ़ा दिया है। पुलिस ने भले ही मुकदमा दर्ज कर लिया हो, पर 3 दिन बाद भी किसी की गिरफ्तारी तो दूर, पुलिस अब तक ये तक नहीं पता लगा पाई है कि ये पोस्टर किसने लगाए हैं। आसमान को छूती चमचमाती ये बिल्डिंगें, इनको साफ सुथरा ये चमकता हुआ कौन रखता है? इन्हीं झुग्गियों में रहने वाली महिलाएं, लोग। अब इनको धमकी मिल रही है क्योंकि ये एक धर्म विशेष हैं,
माहौल ख़राब हुआ। नूह से दुकानें जलाई गईं, तोड़ी गईं, तमाम जो लोग बाहर चले गए और अब पोस्टर्स लगने लगे हैं जिसमें ये लिखा है कि 2 या 3 दिन में झुग्गियाँ खाली कर दो वरना जला देंगे। यहाँ तक कि महिलाओं के साथ बलात्कार की धमकी भी दी गई है। समाज को आगे आना चाहिए, इनको यकीन दिलाना चाहिए कि आप यहाँ सुरक्षित हैं। प्रशासन तो अपना काम कर ही रहा है। सहयोगी अशोक महाले के साथ गुरुग्राम से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात हम महाराष्ट्र की करते हैं। महाराष्ट्र में 73 किसानों ने चंद्रपुर जिले में आत्महत्या की है। इस साल जनवरी में जुलाई के बीच ये मामले सामने आए। 13 किसानों ने तो पिछले महीने ही अपनी जान ली। आंकड़ों के अनुसार 64,369 किसानों की 54,514 हेक्टेयर में खड़ी फसल बाढ़ की वजह से इस साल जून जुलाई में खराब हो गई थी। और एक और तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो मुंबई की है। आज मुंबई में स्थित मंत्रालय में किसानों ने प्रदर्शन किया है। हमें बताया गया कि पिछले 105 दिनों से मुआवजे की मांग में डटे हुए थे। पुलिस ने कुछ को हिरासत में लिया है। इस तरह से ये लोग मंत्रालय में घुस गए। ये किसान मुआवजे को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो एक तरह से नाटकीय तस्वीरें हैं मुंबई स्थित मंत्रालय से आज दोपहर में आई। उधर महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश नहीं होने के कारण अगस्त महीने में ही अब टैंकर के जरिए पानी पहुंचाया जा रहा है। किसान परेशान हैं, उन्हें उनकी फसल की चिंता है। और इस बीच जो हमारा जो मौसम विभाग है, भारतीय मौसम विभाग, उन्होंने कुछ आज जानकारियां दी हैं। आज देश में मॉनसून जो है वो कमजोर फेस में है, कहा गया हमारे मॉनसून विभाग की तरफ से। देश के अधिकतर हिस्सों में अभी मॉनसून कमजोर है। तमिलनाडु और केरल में अगले 2 से 4 दिन में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। बाकी सभी हिस्सों में अगले कुछ दिनों में मॉनसून कमजोर रहने का पूर्वानुमान है। तो हम आपको बता दें, केरल महाराष्ट्र में 48% कम, झारखंड में 35% की कमी, रायलसीमा में 30% की कमी, कर्नाटक में 29% की कमी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 27% की कमी, गांगेय पश्चिम बंगाल में 27% की कमी, बिहार में 25% की कमी और मध्य महाराष्ट्र में 21% की कमी बताई गई है। एक लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए देश की बात के साथ। दिल्ली के एक सरकारी स्कूल की महिला टीचर पर आरोप है कि उसने 4 मुस्लिम छात्रों से उनके धर्म को लेकर अभद्र टिप्पणी की। छात्रों को कहा कि पाकिस्तान चले जाओ। छात्रों ने इसकी शिकायत पुलिस में की। पुलिस ने जो मामला है केस दर्ज कर लिया है शिक्षक के खिलाफ। दिल्ली सरकार के गांधीनगर के एक स्कूल में पढ़ने वाले 4 छात्रों का आरोप है कि जिस दिन चंद्रयान मिशन पूरा हुआ उस दिन इंग्लिश पढ़ाने वाली एक महिला टीचर ने उनके धर्म को लेकर अभद्र बातें कहीं। जिस दिन चंद्रयान हुआ था उसके बाद बताते उन्होंने बच्चे से ये कहना शुरू कर दिया, आप इंडियन नहीं हो, आपने देश आजाद नहीं कराया, कोई योगदान नहीं है मुसलमानों का देश आजाद कराने में, और आपका कावा इसलिए काला है कि वहाँ अंधेरा है, और आपका कुरान कुछ नहीं है, पहले गीता आई है। ये सब बातें करी हैं उन्होंने। और आप बकरा काटते हो, पालते हो और फिर तुमसे काट देते हो, तुम्हें कोई काटे तो कैसा लगेगा आपको? स्कूल में 9th क्लास का सिलेबस ना पढ़ाकर दीन के बारे में गलत बातें उठाई गई हैं, जो हमारे दिल को बहुत ठेस पहुंची है। अगर किसी दीन के बारे में बात करनी है तो हम चारों धर्म के बारे में बच्चों को बताएंगे, क्योंकि सबके दिलों में अपना अपना दीन मौजूद है और कोई भी अपने दीन धर्म के बारे में गलत बात नहीं सुन सकता। पीड़ित छात्रों के परिवार का आरोप है कि इस मामले की शिकायत स्कूल प्रशासन से की गई, लेकिन स्कूल की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस पूरी घटना से गांधीनगर जहां पर मैं खड़ा हूं, यहां पर जो बच्चे रहते हैं उनके परिवार, उनके पड़ोसी काफ़ी दुखी हैं। और स्कूल में इस तरह की घटना जिसमें धर्म विशेष को लेकर टिप्पणी और बच्चों के बीच धर्म को लेकर बंटवारे की बातें, इसको लेकर जो बच्चों के परिवार हैं, उनके पड़ोसी हैं और एक समुदाय के लोग जो हैं वो काफ़ी
हैरान हैं और उनका कहना ये है कि ऐसी जो टिप्पणियां हैं वो बर्दाश्त के बाहर हैं और ऐसे जो टीचर हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके बाद छात्रों की तरफ से गांधीनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने छात्रों के बयान दर्ज कर आरोपी महिला टीचर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हाँ, इसमें हमें एक कंप्लेंट मिली थी। कंप्लेंट के बाद हमने बच्चों की ड्यू काउंसलिंग की, साथ ही साथ हमारे जुवेनाइल वेलफेयर ऑफिसर की प्रेजेंस में ये काउंसलिंग हुई एंड आफ्टर दैट जो फैक्ट्स के अकॉर्डिंग वी हैव रजिस्टर्ड अ केस अप्रोप्रिएटली अंडर अप्रोप्रिएट सेक्शंस और इसके बाद वी आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस थॉरोली एंड वी आर कलेक्टिंग द एविडेंसेस। वहीं दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग की तरफ से इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई न करने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। राजधानी दिल्ली में G20 की तैयारियां चल रही हैं। विदेशी मेहमानों को लेकर चांदनी चौक के कारोबारियों ने भी तैयारी कर रखी है। कई दुकानदारों ने अंग्रेजी से लेकर दूसरे भाषाओं के जानकारों को अपनी दुकान पर वो लोग रखेंगे ताकि मेहमानों को खरीदारी में दिक्कत ना आए और उनके कारोबार भी जमकर हो। विदेशी मेहमानों के स्वागत को तैयार चांदनी चौक। फैशन से लेकर फूड तक के लिए मशहूर चांदनी चौक के दुकानदार कुछ दिनों के लिए अंग्रेजी के जानकार को अपनी दुकान पर रखेंगे। तो लहंगा व्यापारी सुरेश सेठ के बेटे और बेटी G20 के दौरान दुकान पर आएंगे, जिनको अंग्रेजी भी आती है और जर्मन भी। जी मैं अंग्रेजी समझ लेता हूँ लेकिन इतने मैं फ्लुएंट बोलता नहीं मैं। तो क्या इंतजाम किया? मेरा बेटा है मोहक सेठ, वो शॉप पर मैंने उनको बुलाया और मेरी बेटी भी है, वो सब इंग्लिश जानते हैं हर चीज में और मेरी बेटी वो जर्मन भाषा भी जानती है। अच्छा, तो उसको रखेंगे? जी हाँ, वो आएंगी मेरे पास, यहीं पर वो मेरे पास आके बैठेंगी तो वो मेरे हाथ बटाएंगे। आप लोगों को अपना हाइजीन मेंटेन करना है, ग्लव्स पहनने हैं और जो भी बाहर से आएंगे उनको बड़े आदर से नमस्कार, प्लीज मैडम कम इन, उनको अपने चीज़ों का बारे में बताना है, उनका आदर करना है और ये आपको देखना है, ये हमारे ये पूरे देश की एक इज्जत का सवाल है और आपको। खाने पीने के कारोबार से जुड़े लोग भी मौका चूकना नहीं चाहते, लिहाजा कह रहे हैं कि कारोबार करना है तो मेहमानों की जरूरत को समझे बिना मुमकिन नहीं। जब समझेंगे नहीं तो दुकान के व्यंजन का स्वाद भला वो कैसे चखेंगे। कम से कम 4-5 दिन के लिए तो करेंगे। 8 तारीख को शुरू है, 8 से 10 तक तो ये रहेगा ही रहेगा। उसके बाद कुछ लोग रुक भी जाएंगे, घूमने जाएंगे, आगरा, जयपुर वगैरह, दिल्ली में घूमेंगे, तो 5-6 दिन तो रखेंगे सर। और हमें आशा है कि यहाँ पे अच्छी फुटफॉल पड़ेगी। चैम्बर ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री का कहना है कि चांदनी चौक के करीब 90% कारोबारी हिंदी में ही सहज हैं। कुछ व्यापारियों ने इंग्लिश के जो ट्रांसलेटर हैं वो हायर किए हुए हैं। कुछ गाइड से बात चल रही है कि कुछ गाइड आए जो फ्रेंच भी जानते हो, रशिया जानते हो, चाइनीज जानते हो, जो मेहमानों से, क्योंकि कम्युनिकेट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है उनके सामने। तो लगभग जो अभी तक डाटा आया है 1200 के आसपास जो व्यापारी हैं जो ऐसी चीज की है। कुछ व्यापारी ऐसे हैं जिनके बच्चे, आज की जनरेशन है जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे अंग्रेजी बोल लेते हैं, उनके बच्चे हालांकि व्यापार में नहीं है, लेकिन वो अपने बच्चों को अपनी दुकान पे 3 दिन के लिए बुला रहे हैं कि बेटा आप 3 दिन दुकान पे जरूर आइए। बाजार और कारोबार खरीदार पर चलता है। जब दरवाजे पर मेहमान विदेशी हो तो उनको समझना और समझाना दोनों ही जरूरी है। मौका बड़ा है, लिहाजा कारोबारियों की तैयारी पूरी है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में जाते जाते बात त्योहार ओणम की। ये त्योहार आज पूरे देश भर में रौनक इसकी देखी जा सकती है। आपको छोड़े जाते हैं तस्वीरों के साथ।